بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں ملحقات مبتدا اور خبر۔ ملحقات مبتدا اور خبر کے بارے میں مصنف نے 4 مورد بیان کیے ہیں۔ پہلا مورد مبتداء وصفی کے بارے میں بیان فرمایا، اور انہوں نے تعریف میں لکھا کہ مبتداء وصفی وہ ہوتا ہے، وہ صفت ہے جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، اس شرط کے ساتھ کہ بعد والے اسم ظاہر کو یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہی ہو۔ ایسی صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے، اس شرط کے ساتھ اپنے بعد والے اسم ظاہر کو یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہی ہو، تو یہ مبتدا وصفی ہوگا۔ اور دوسرا مورد انہوں نے بیان فرمایا ملحقات مبتدا اور خبر میں سے کہ مبتدا اور خبر مکمل ہونے کے بعد اگر اس میں نکرہ مشتق آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تیسرا مورد جو ملحقات میں سے ہے وہ یہ ہے مبتدا اور خبر کو میں سے ہر ایک کو حذف کرنا۔ اس میں 4 سوال انہوں نے بیان فرمائے کہ کب مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ فرمایا کہ کب مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا سوال فرمایا کہ کب خبر کو حذف کرنا جائز ہے، اور چوتھا سوال کہ کب خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اور آج جو چوتھا مورد ہے ملحقات مبتدا اور خبر میں سے، وہ ہے ضمیر فصل یا ضمیر اعماد۔ اس بحث میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ضمیر فصل یا ضمیر اعماد کیا ہے۔ پہلا سوال کہ ضمیر فصل یا ضمیر اعماد کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ضمیر فصل یا ضمیر اعماد کا حکم کیا ہے۔ جب آپ کو سوال سمجھ آ گئے تو اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ صاحب کتاب آغائے رشید شرطونی فرماتے ہیں کہ ضمیر فصل وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ ضمیر فصل وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جس کو مبتدا اور خبر کے درمیان لایا جاتا ہے تاکہ خبر کو تابع سے جدا کرے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس ضمیر کے بعد آنے والا اسم خبر ہے، وہ صفت یا تابع نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ضمیر، اس ضمیر لگانے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا ہے لفظی فائدہ یہ ہے کہ یہ خبر کو تابع سے جدا کرتی ہے، خبر کو تابع سے جدا کرتی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا فائدہ ہے معنوی۔ وہ کیا ہے کہ یہ مسند کو مسند الیہ پر موقوف کرتی ہے،
یا اس کے الٹ یعنی مسند الیہ کو مسند پر موقوف کرتی ہے۔ یہ اس کے دو فائدے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ ما ہوا حکم ضمیر الفصل او الاماد، ضمیر فصل یا ضمیر اماد کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ضمیر فصل کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے ما قبل کے مطابق ہونی چاہیے، مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی اگر اس ضمیر کا ما قبل مذکر ہے تو یہ ضمیر مذکر آئے گی، اگر اس ضمیر کا ما قبل مؤنث ہے تو یہ ضمیر مؤنث آئے گی۔ دیکھتے ہیں، اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر الفصل او الاماد، ضمیر فصل یا ضمیر اماد۔ ما ہوا ضمیر الفصل او الاماد، ضمیر فصل یا ضمیر اماد کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں ضمیر الفصل او الاماد ہوا ضمیر رفع منفصل یؤتی بہ بین المبتدأ والخبر المعرفتین لتمییز الخبر من التابع نحو اخوک هو العالم۔ ضمیر فصل یا ضمیر اماد وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جس کو لایا جاتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، لتمییز الخبر من التابع تاکہ خبر کو تابع سے جدا کرے۔ جیسے اخوک کا هو العالم، تیرا بھائی وہ ہے جو عالم ہے۔ اس مثال میں اخوک کا مبتدا ہے اور العالم یہ خبر ہے، ان دونوں کے درمیان ضمیر ہوا لگائی گئی ہے اور یہ ضمیر ہوا ضمیر فصل ہے۔ فائدہ تو ان ضمیر الفصل یؤتی بہ لفائدتین، ضمیر فصل کو لایا جاتا ہے دو فائدوں کے لیے۔ ضمیر فصل کو اختر عباس دو فائدوں کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ ہے فائدہ لفظی، احداہما لفظیۃ، ایک فائدہ لفظی ہے، وہی ان یتمیز الخبر من التابع، وہ یہ کہ یہ خبر کو تابع سے جدا کرتی ہے۔ ففی المثال المذکور، پس مذکورہ مثال میں، پچھلی مثال جو ہم نے پڑھی ہے اخوک هو العالم، اس مثال میں فإن العالم لو لاحظ الضمیر امکن ان یظنہ السامع صفۃ، اگر یہ ضمیر نہ ہوتی، یعنی اخوک هو العالم کے درمیان اگر ہوا کی ضمیر نہ ہوتی تو سامع یہ گمان کرتا، ممکن ہے کہ سننے والا یہ گمان کرتا کہ لفظ عالم اس مثال میں صفت ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر ہوا ضمیر نہ لگاتے تو ممکن ہے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ اس مثال میں لفظ عالم صفت ہے، کس کے لیے؟ اخوکا کے لیے۔ فَيَنْتَظِرُ الْخَبَرَ، پس وہ انتظار کرتا خبر کی، فَلَمَّا جِیَ بِهِ تَعَيَّنَتِ الْخَبَرِيَّةُ، پس جب یہ ہوا ضمیر لگائی گئی تو معین ہو گیا کہ یہ لفظ عالم اس مثال میں یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے۔
दूसरा फायदा ज़मीर फसल लगाने का, वसानियतो मानवियतुन, और इस ज़मीर का दूसरा फायदा मानवी है, वो ये है वाहिया कसरुल मुस्नद अलल मुस्नद इलैह, कि ये ज़मीर मुस्नद को मुस्नद इलैह पर मौकूफ करती है। क्यों? लिअन्ना माना कौलिका ज़ैदुन हुवल करीमो, क्योंकि तेरे इस कौल का माना ज़ैदुन हुवल करीम का माना ये है अन्नल करमा मकसूरुन अला ज़ैद, कि करामत जो है वो फकत और फकत ज़ैद पर मौकूफ है, उससे आगे नहीं है। ला यतजावज़ुहु इला अम्र, कि कला करामत ज़ैद से तजावुज करके अम्र तक नहीं पहुंचती, यानी ये फकत और फकत किसके लिए है? ज़ैद के लिए है, अम्र के लिए नहीं है। वालिज़ालिका युकालु फी ताकीदिही ला अम्र, इसीलिए इसकी ताकीद में कहा जाता है कि ला अम्र, कि करामत फकत ज़ैद के लिए है, अम्र के लिए नहीं है। समझ आ रही है ना? औ कसरुल मुस्नद इलैह अलल मुस्नद, या ये मुस्नद इलैह को मुस्नद पर मौकूफ करती है। पिछली मिसाल में आपने देखा ज़ैदुन मुस्नद इलैह है, ज़ैदुन क्या है? मुस्नद इलैह, और अल करीम जो है ये है मुस्नद। इस मिसाल में होवा ने आकर अल करीम को मौकूफ कर दिया है फकत और फकत किस पर? ज़ैद पर। ठीक है, तो या क्या करती, किसके लिए आती है कि मुस्नद इलैह को मुस्नद पर मौकूफ कर देती है। जैसे अल गयूरो होवन नाफियो लिवतनिही, गयूर वो है जो अपने वतन के लिए नफा बख्श होता है। तो इस मिसाल में अल गयूर ये मुस्नद इलैह है, ये क्या है? मुस्नद इलैह, और अन्नाफियो लिवतनिही ये है मुस्नद अगला मरसूल। तवज्जो से समझे, इन्होंने क्या फरमाया है पहले कि ज़मीर फसल या मानवी फायदा देती है या लफ्जी फायदा देती है। लफ्जी फायदे की बात हो गई, मानवी की दो सूरतें बनाई हैं। वो क्या बनाई हैं कि मुस्नद को मुस्नद इलैह पर मौकूफ कर दे, और दूसरी सूरत ये बनाई है कि मुस्नद इलैह को मुस्नद पर मौकूफ कर देती है। तो ये मिसाल है कि मुस्नद, इस मिसाल में ज़मीर फासिल ने मुस्नद इलैह को मुस्नद पर मौकूफ कर दिया है। देखिए अन्नाफियो लिवतनिही ये है मुस्नद, और अल गयूर है मुस्नद इलैह। गैरत को किस पर मौकूफ कर दिया है? उस शख्स के लिए जो वतन के लिए क्या है? नफा बख्श है। आगे समझ? लैसल गयूर इल्ला नाफिल वतनिही, कोई गैरतमंद नहीं है मगर वो जो वतन के लिए फायदामंद हो। फैज़ा कानल कसरो हासिलन बिदून ज़मीरिल फसल, अब कहते हैं आला मोहम्मद अब्बास कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कसर ज़मीर के बगैर भी हासिल हो रहा है, लेकिन ज़मीर भी जिक्र हो गई है। अब क्या करेंगे? ये कहते हैं इज़ा कानल कसरो हासिलन, जब कसर हासिल हो जाए बिदून ज़मीरिल फसल, ज़मीर फसल के बगैर, कान ज़मीरो लित्तौकीदे, तो इस वक्त ज़मीर फ़कत किसके लिए होगी? तकीद के लिए होगी। इस वक्त ज़मीर किसके लिए होगी? तकीद के लिए। जैसे
इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, बेशक तेरा रब वो है जो बहुत अच्छी तरह जानता है उसको ज़ल्ला अन सबीलिही, जो उसके रास्ते से गुमराह हो गया है। इस मिसाल में जो ज़मीर है हुवा, ये किसके लिए है? तकीद के लिए है। ये किसके लिए? देखिए बेटा, बाज़ औक़ात यूं होता है कि एक ज़मीर आती है और उस ज़मीर में तीनों सूरतों का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल तीनों सूरतें क्या, यानी ये इस्तेमाल होता है कि मुमकिन है ये ज़मीर खबर को ताबे से जुदा करने के लिए आई हो, एक इस्तेमाल। और दूसरा इस्तेमाल ये होता है कि मुमकिन है ये ज़मीर मुस्नद को मुस्नद इलैह पर मौकूफ़ करने के लिए आई हो, या मुस्नद इलैह को मुस्नद पर मौकूफ़ करने के लिए आई हो। और तीसरा इस्तेमाल ये होता है कि मुमकिन है ये ज़मीर किसके लिए हो? तकीद के लिए हो। ये बात करते हैं, रुब्बमा इज्तमाअतिल अग़राज़ुस सलासतु, बाज़ औक़ात तीनों सूरतें यानी तीनों फ़ायदे जमा हो जाते हैं, तीनों फ़ायदों के लिए ज़मीर आती है। जैसे उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, इस मिसाल में हम ज़मीर है। इस मिसाल में ज़मीर कौन सी है? ये ज़मीर फ़स्ल है। इसके बारे में इत्माल है। क्या इत्माल है? फ़इन्नहु युअतमलु फ़स्लल ख़बरि अनिल नाति, इसके बारे में एक इत्माल ये है कि ये खबर को नात से जुदा करने के लिए आई है। वयुअतमलुल कसर, और कसर का इत्माल भी है। व तौकीद, और ये भी इत्माल है कि ये ज़मीर किसके लिए हो? तकीद के लिए। समझ आई? दूसरा सवाल है, मा हुआ हुक्म ज़मीर फ़स्ल अविल इमाद, ज़मीर फ़स्ल या ज़मीर इमाद का हुक्म क्या है? तो इसके बारे में फरमाते हैं, हुक्म ज़मीर फ़स्ल अविल इमाद अन यतसर्रफ़ा फ़ी तज़कीर व तानीस हस्ब मा क़ब्ल। ज़मीर फ़स्ल या ज़मीर इमाद का हुक्म ये है कि ये अपने मा कब्ल के मुताबिक होती है मुज़क्कर और मुअन्नस होने में। अपने मा कब्ल के, शायद अगर आपको कोई वहम हो, आपको समझ में न आए कि यहाँ लफ्ज़ आया अन यतसर्रफ़ा, मुताबिक वाला लफ्ज़ नहीं आया, तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यूं होगा, ज़मीर फ़स्ल या इमाद का हुक्म ये है कि ये तब्दील होती है मुज़क्कर और मुअन्नस में अपने मा कब्ल के इतबार से। मफ़हूम हुई है, यानी ये अपने मा कब्ल के मुताबिक होती है मुज़क्कर और मुअन्नस होने। व शर्तुल इत्यान बिही अन यकून कुल्लु मिनल मुब्तदा'i वल ख़बरि मारिफ़तैन। देखिए बेटा, ये कहते हैं ये ज़मीर फ़स्ल को लगाने की कोई शर्त भी है या नहीं है? ये कहते हैं हाँ, एक शर्त है। वो ये है कि ज़मीर फ़स्ल को लगाने की शर्त ये है कि ये उस वक्त लगाई जाती है जब मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हो। मुब्तदा और खबर दोनों व शर्तुल इत्यान बिही, इसको लाने की शर्त ये है अन यकून कुल्लु मिनल मुब्तदा वल खबर मारिफतैन, मुब्तदा और खबर में से हर एक मारिफा हो। जैसे अस्सादिकूना हुमुल मुफ़लिहून, इस मिसाल में अस्सादिकून मुब्तदा मारिफा है, इसी तरह अल मुफ़लिहून खबर भी मारिफा है, लिहाजा दरमियान में ज़मीर हुम लगाई गई है। औ का मारिफतैन, या दोनों मारिफा की तरह हो, मारिफा ना हो बल्कि जैसे लैसा आहदुन हुवा अअलमु
आलम मिन अखी का, कोई एक भी नहीं है जो तेरे भाई से ज्यादा जानने वाला, तेरे भाई से ज्यादा जानने वाला हो। इस मिसाल में बेटा ये आहादुन जो है ये मार्फा की तरह है, मार्फा नहीं है बल्कि मार्फा की तरह है, लिहाजा दरमियान में वो ज़मीर लगाएंगे। फायदा तो यानी वजात लोड, यहाँ जहाँ भी फायदा इस्तेमाल होता है, कई दफा आपको बताया है कि फायदा का माना क्या है, वजात या बालबाजी का नोट कह दें। लैसा लिज़मीरिल इमादे महल्लुन मिनल इराब, बेटा कुछ जुमले और कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिनका महल्लन कोई इराब होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका महल्लन इराब नहीं होता। तो ये कहते हैं लैसा लिज़मीर इमाद महल्लुन मिनल इराब, कि ज़मीर इमाद के लिए कोई महल्लन इराब नहीं होता, ज़मीर इमाद के लिए कोई इराब नहीं होता है महल्लन। क्यों? लिअन्नहु इन्नमा युअता बिही लिमुजर्रदिल फ़स्ल दून इस्नाद, क्योंकि ये फ़कत और फ़कत फ़स्ल के लिए लाई जाती है, इस्नाद के लिए नहीं लगाई जाती। अच्छा देखिए बेटा, अब ये कहते हैं कि खबर, ऐसी खबर जिस पर नासिख दाखिल हो गया है, यानी हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल दाखिल हो गए हैं, या मकसद अफ़ाल नाक़िसा दाखिल हो गए हैं, मा वला मुशाबे लैसा दाखिल हो गए, और नवासिख दाखिल होने की वजह से खबर मंसूब हो गई है। खबर, अब इस खबर में ये ज़मीर कोई तब्दीली लाएगी या नहीं लाएगी? तो ये कहते हैं ला युगय्यिरु हुक्मल खबरिल मनसूब बिन नासिख, ये होवा ज़मीर यानी ये ज़मीर फ़स्ल उस खबर में कोई तब्दीली नहीं लाएगी जो खबर मंसूब है नासिख के जरिए। फयब्की अला नस्बिही, बस वो खबर अपनी नस्ब पर बाकी रहेगी। जैसे कानल आलिमो हुआ मर्ज अल उलमा, इस मिसाल में देखो अल आलिम काना का इस्म मरफू है, मर्जा काना की खबर मंसूब है, दरमियान में होवा ज़मीर फ़स्ल आ गई है, इस ज़मीर की वजह से कोई तब्दीली। आगे ला युतगय्यरु अन सीगतिल मरफूए, अब कहते हैं बेटा आपने पहले बताया है कि ये ज़मीर फ़स्ल ज़मीर मरफू है, मुनफसिल है यानी मरफू, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने मा काबिल के मुताबिक हो, मुज़क्कर और मुअन्नस होने में। अब ये कहते हैं कि इस ज़मीर का मा काबिल नवासिख की वजह से मंसूब है। मा काबिल क्या है? नवासिख की वजह से मंसूब है। तो अब क्या ये ज़मीर भी मरफू आएगी या फिर मंसूब हो जाएगी? तो ये कहते हैं नहीं, इसमें कोई तब्दीली नहीं, अगरचे मा काबिल मंसूब हो ये फिर भी मरफू आएगी। ला युतगय्यरु अन सीगतिल मरफूए, ज़मीर फ़स्ल सीगा मरफू से तब्दील नहीं होगी, वलो वाक़अ बअद मंसूबिन, अगरचे ये ज़मीर इसमें मंसूब के बाद वाक़ई हो, जैसे इन्नका अंतल खतीबो। देखिए मिसाल सुन लिया, आखिरी बात है इस मिसाल में, काफ ज़मीर जो है ये इन्ना का इस्म है, इन्ना का और मंसूब है, इसके बाद अंत ज़मीर ज़मीर फ़स्ल है जो कि मरफू लगाई गई है। इसी तरह जअलना ज़ुर्रियतहू हुमुल बाकीना, हुमुल, ये देखिए ये ज़ुर्रियता ये मंसूब है,
لیکن ہوم ضمیر جو ہے یہ مرفوع لگائی گئی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔